Welcome everyone. Welcome to Physics by RN. So as you know, we are doing the free lecture series for upcoming CSR NET exam. So CSR NET exam is coming in June 2023. So first topic which we started was nuclear and particle physics. Why we started this topic? Because it is very less often covered for CSR NET and it is a very important part of the part C syllabus. So almost 15 marks questions will come from numerical nuclear physics. If we do actually a good study of 4, 5, 6 days for nuclear physics, then we can easily score 5 to 10 marks. One question you can definitely do, or if good questions are coming in that year, then you can even do 2 questions out of 3 which will be asked. So this is our target. So that we have a good concepts of the syllabus, so that out of 3 questions we can easily do 1 or 2 questions in the exam. That will actually give us 5 to 10 marks. Okay. So today's topic which we are going to do is particle physics. In the first 2 classes which we did was we did nuclear forces. We covered nuclear forces. Now we are going to do particle physics. Now particle physics is extremely important topic. Questions definitely come in CSR net exam. At least one question most of the time has came from particle physics, and the question level is also not very difficult. The question level is very easy for particle physics, and once you know the concepts of particle physics, you can easily score a marks in the particle physics. Now I am again and again saying particle physics, particle physics, particle physics. What are these particles I am talking about? So particle physics is a study of particles, small scale particles, those particles which makes up our matter. Everything in our matter, all the matter which is made by some particles, we are going to study those particles. So these particles are called elementary particles. And the examples, the basic fundamental examples of these particles is electron, proton, and neutron. Not just these three, there are many other particles as well. And we study those particles in particle physics. For example, we have mesons, we have leptons, we have hadrons, so many sort of particles we have. We have pions, and all these we will study neutrino, antineutrino. Okay, what are all these particles? How we categorize them? All that things we will study in next 2, 3 lectures. Fine. So how these elementary particles comes? How we get these elementary particles? From where do we get this elementary part? We know it is inside the matter, but how we can extract them? How we can take them out? So there are three main sources of elementary particles from where you can get the elementary particles. Number one is cosmic rays. Now cosmic rays are the rays of particles and energy. So listen carefully. Cosmic rays are the rays of particles and energy coming from the deep space. So in the deep space, many stars are undergoing many sort of reactions. They are the stars are getting collisions, the stars are getting collided, or they are getting destroyed, or they are new stars are generated. Many sort of things are happening in the deep space. In those reactions or in those processes, many sort of elementary particles are produced. Now those particles travels long distance from deep space and reaches our earth. And these signals are very weak, very weak. If you try to measure the elementary particles coming from the deep space, they are very small, but still we are getting a good amount of elementary particles from the cosmic rays. So you can get all sort of particles from the cosmic rays. So nuclear scientists use those particles and do the many sort of experiments and all the information they want to collect. Okay, so first source of elementary particles is cosmic rays. Okay, now second is particle accelerator. For example, CERN. We all know CERN is a particle accelerator. So at CERN, what do? We do many sort of uh, we produce high energies.
and we make atoms collide with each other, we make nucleus collide with each other, all sort of things we do, and ultimately we produce the elementary particles at the particle accelerators. So whenever you accelerate the particles, accelerate the atoms or a nuclei, so let's say you accelerate atom or nuclei at a very high energy, at very high energy, and then you make them collide, and then you make them collide. So two nuclei, very high speed, collide with each other. They break. And when the nuclei break, all the particles inside the nucleus come out. And we use those particles. So second source of elementary particles is particle accelerator. Now, third is nuclear reactions. Many sort of elementary particles are also generated in nuclear reactions. For example, beta decay. In beta decay, we can get positron, which is not very easy to find. Similarly, excuse me. Similarly, all sort of nuclear reactions, whichever you see, all the radioactive materials, when they undergo the nuclear reaction, they give us the elementary particles. Nuclei undergo fission, nuclei undergo fusion. As a result, they produce many sort of elementary particles, and we will see those equations, how these are getting produced. Okay, so everyone understood the three sources of elementary particles. What are the three basic sources? So all of you understood? Any questions still here? Yes, no? You understood the topic one? Everyone? Hello? Yes, sir. Okay, nice. Let's begin the Yes. second. Once we know the particles, how the particles are coming, the basic information which we should have is also about the forces between them. However, we have very nicely studied the strong forces in the first two lectures. We have covered the nuclear forces very nicely. But what are all the forces which are there? Since elementary particles can experience many sort of forces, so what are all the forces which exist in the universe? So there are basically four forces which exist in the universe. One is gravitational, other is electromagnetic, then weak, and then strong. Strong forces are also called nuclear forces. Okay. So gravitational force is one of the first force which we found. At the time of Newton, and in the age of 1600s, 1666, humans were quite aware of the force called gravitational force because it was present in daily life. Now, this is an attractive force. We know gravitational only attract. Gravitational force never repel any other body. It is an infinite range force. It means if you have a mass here, it can experience a gravitational force to an infinite distance away from one another. So stars are quite far from each other. Still, they experience a gravitational force. So it's an infinite range force. Okay. Now, you don't have to worry about this, but you have to worry about that this is the weakest force in the universe. This is the weakest force. No force is more weak than weak gravitational force. Okay. Weakest force. Now, another thing which we studied in the lectures of nuclear forces, that whenever forces acts, whenever object A experiences a force on object B, how it happens. So object A throws one sort of imaginary particle towards B. So object A throws some sort of particle towards B, and when that particle reaches B, that particle exerts the force on B. So क्या होता है? A ने कुछ particle फेंका, अब वो particle हवा में गया 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 और then it ultimately reached B. ये process बहुत fast होता है. B पे पहुंचा और B पर जाकर उसने force लगाई. Now in gravitational force, this intermediate particle जो बीच में चलता है, that is called graviton. Now graviton is a completely theoretical particle. It's a completely hypothetical particle. As the graviton experimentally
फाइंड नहीं किया गया है. वी हैव नेवर सीन एक्सपेरिमेंटली ग्रेविटोन. इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल और एन इमेजिनरी पार्टिकल. ओके, this is a theory of forces. It's not actually that we are measuring graviton or graviton exists. Okay, so graviton is similar to photon. So graviton has no mass and it travels with the speed of light, similar to the photon. Other feature of gravitational force is it is inverse square law force. For example, gravitational force depends inversely on the square of the distances between the masses. So it is called inverse square law force. Hence, it is a central force. It is a central force or conservative force. It means there is no loss of energy in this force. The total energy remain conserved in this force. So this was all about the gravitational force you need to know. Then there is electromagnetic force. So electromagnetic force acts between charges. Gravitational force acts between masses and electromagnetic force attracts between charges. It also has infinite range, but it can be attractive as well as repulsive. Now, this is also inverse square law force. So this is also central. Okay. Now, this is responsible for chemical and biological reactions, because in chemistry and biology, there are charges which are moving. Molecules have charges. So the forces between them are responsible, are acting electromagnetic forces. In nuclear physics also, electromagnetic forces matters. Why? Because all the particles like electron, proton, they will have some sort of electromagnetic interaction. ठीक है, तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ये फोर्स, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स से ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. दिस यू शुड रिमेंबर. और इसके अंदर थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली. एंड इसके अंदर जो एक्सचेंज पार्टिकल है, मींस ए और बी के बीच में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है, तो ए जो पार्टिकल फेंकता है वो है फोटोन. वी ऑल नो फोटोन, और हमने फोटोन को डिटेक्ट भी किया. सो दिस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल, ये एक्चुअली एक पार्टिकल है. ठीक है. नाउ थर्ड इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं. So you can see the lecture, that is very important. You should see that lecture. Okay. Now this is the strongest force. You should remember. Okay. Rest you can see from the other two lectures. Okay. I am not going to go in detail for the nuclear forces. And the last forces which I want to cover is weak forces. Weak forces. Then there is one force called weak force. Now the weak force is actually not the weakest. It is not the weakest. Weakest force is gravitational. Then comes weak. Then comes EMT. And then comes nuclear. Okay. The weakest force is gravity, and then weak interaction, then electromagnetic, and then nuclear physics. Okay. So now weak interaction. So weak interaction. कब आती है ये weak interaction? तो weak interaction आती है when we actually have decays. जब भी न्यूक्लियस डिके करता है ना, न्यूक्लियस डिके करता है, तो कुछ डिकेज में, सब डिकेज में नहीं, लेकिन कुछ कुछ डिकेज में, जैसे कि बीटा डिके है एक, बीटा डिके हम सब ने सुना है, बीटा डिके है जैसे, और भी कुछ डिकेज हैं जिनके अंदर वीक फोर्सेस जो हैं एक्ट करती, वीक फोर्सेस आती हैं. ठीक है. दैट इज वन ऑफ द प्लेस वेयर द वीक फोर्सेस कम्स इनटू प्ले. ये इसके अगर आप इसमें अगर तुम देखो तो एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, W बोसोन और Z बोसोन. ये दो नए पार्टिकल्स हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगे. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो है W बोसोन और Z बोसोन. मींस अगर A और B के बीच में वीक फोर्स लग रही है, इसका मतलब A W बोसोन को भेज रहा है और वो W बोसोन B पर जाकर फोर्स लगा रहा है. ठीक है. ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं. ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस है. ठीक है. और आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. तो जो बीच वाला पार्टिकल है, जो बीच वाला पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है और फोर्स लगा रहा है, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो रेंज कम होगी.
और अगर उसका मास कम होगा तो रेंज ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोटोन, फोटोन का मास 0 है तो रेंज क्या है, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज क्या है, इनफाइनाइट। सिमिलरली ग्रेविटोन का मास 0 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या है, इनफाइनाइट। अब जो न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच में हमने पढ़ा जो पार्टिकल है वो है पायोन, पायोन उसका मास काफी ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, शॉर्ट रेंज। सिमिलरली वीक इंटरेक्शंस के बीच में जो पार्टिकल है डब्ल्यू और जेड बोजोन, उसका मास क्या है, काफी ज्यादा, तो ये कौन सी फोर्स है, शॉर्ट रेंज। तो ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ये टेबल के अंदर मैंने सारा इसको समराइज कर दिया है, यू कैन सी द टेबल आफ्टरवर्ड्स। लेकिन ये चारों फोर्सेस के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन 110% पता होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं गेट में और नेट में भी इसका कुछ हिंट आ सकता है। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। एनी क्वेश्चन टिल हियर, एनी क्वेश्चन टिल हियर, सबको क्लियर है इतना? आई होप सो। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स कितने कितने तरह के हैं और इनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये टेबल आप जरूर साथ साथ में बना लो। इस टेबल के ऊपर ही हम आज का दिन टाइम सारा का सारा स्पेंड करेंगे क्योंकि ये टेबल बहुत जरूरी है। एक बार आपको ये टेबल याद हो गया ना, फिर आई थिंक पार्टिकल फिजिक्स को करना बहुत ही इजी हो जाता है। वंस यू नो दिस टेबल देन द पार्टिकल फिजिक्स बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो आज का हम ये टाइम जो बाकी का है वो टेबल के ऊपर स्पेंड करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन, लेट मी मेक दिस टेबल अगेन। धीरे धीरे हम ये टेबल साथ में बनाते हैं। मेरे साथ में ये टेबल बनाओ सो दैट यू कैन एक्चुअली फील इट, आप फील कर सको। ओके, सो लेट्स बिगिन। बिगिन सो हम कैटेगराइज कर रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सबसे पहले हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हेड्रॉन्स, एक होते हैं हेड्रॉन्स और दूसरे होते हैं लेप्टॉन्स। सबसे पहले आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। एक होते हैं हेड्रॉन्स और दूसरे होते हैं लेप्टॉन्स। अब हेड्रॉन्स भी दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, या आई शुड से या हेड्रॉन्स आल्सो डिवाइड्स इन टू पार्ट्स। नंबर वन, हेड्रॉन्स आगे जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। नंबर वन मीजॉन्स, नंबर वन मेजॉन्स और नंबर टू बेरियॉन्स। नंबर टू बेरियॉन्स। तो सबसे पहले इतना क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हेड्रॉन्स और दूसरा लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स को भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मीजॉन्स और एक होते हैं बेरियॉन्स। अब समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम लेप्टॉन्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेप्टॉन्स को देख लेते हैं। 6 तरह के लेप्टॉन्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक है म्यूऑन और एक है न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद म्यूऑन। एक है टाउ पार्टिकल और एक है न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद टाउ पार्टिकल। तो 3 पार्टिकल्स हैं और 3 ही न्यूट्रिनो हैं एसोसिएटेड। ठीक है, 3 पार्टिकल्स हैं और 3 न्यूट्रिनो हैं उनसे एसोसिएटेड। तो टोटल 6 लेप्टॉन्स हैं, टोटल 6 लेप्टॉन्स। लेकिन 6 ही लेप्टॉन्स नहीं है, इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ऐसे ही सबके जो है एंटी पार्टिकल्स होंगे। यू कैन मेक दिस। ओके, आप साथ साथ में इसको बना लो। तो 6 पार्टिकल्स हैं और 6 ही एंटी पार्टिकल्स हैं। टोटल कितने लेप्टॉन्स हो गए, 12। अब एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल्स वो होते हैं
जिनका मास वगैरह तो सब सेम होता है, लेकिन चार्ज जो है उल्टा हो जाता है, या उसके ब्रदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उल्टी हो जाती, दैट्स इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, टॉ नेगेटिव का टॉ पॉजिटिव होता है, न्यू नेगेटिव का न्यू पॉजिटिव होता है, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो लेप्टॉन्स को कैसे याद करेंगे? तीन पार्टिकल्स और उनसे रिलेटेड तीन न्यूट्रिनोस। समझ आया यहां तक? 12 लेप्टॉन्स कौन से हैं? यस सर। बताओ भाई, 12 लेप्टॉन समझ आए सबको? यस। ओके, 12 लेप्टॉन समझ आए, तो अब हम बात करते हैं मीजोन्स, ठीक है। हम मीजोन्स को अलग से जाकर लिख लेते हैं कि मीजोन्स कौन से हैं, ठीक है, कि मीजोन्स कौन से। तो मीजोन्स जो है वो तीन तरह के हैं। मीजोन्स जो है वो तीन तरह के हैं। एक है पायोन्स, एक है केओन्स, ठीक है, एक है पायोन्स, एक है कायोन्स और एक है ईटा पार्टिकल, ठीक है जी। तो मीजोन्स तीन तरह के हैं, एक है पायोन, एक है कायोन और एक है ईटा पार्टिकल्स। अब पायोन जो है तो तीन तरह के होते हैं, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल और पाई पॉजिटिव। पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल एंड पाई पॉजिटिव। अब केओन जो है वो भी तीन तरह के होते हैं, के नेगेटिव, के न्यूट्रल और के पॉजिटिव, ठीक है। और ईटा पार्टिकल एक ही तरह का होता है, ईटा न्यूट्रल, ईटा न्यूट्रल। तो हमने कैटेगराइज करना कैसे शुरू किया था? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर दो होते हैं, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स हमने पढ़ लिए कि 12 हैं। हेड्रॉन्स के अंदर हमें दो कैटेगरीज पढ़नी है, एक है मीजोन्स की और एक है बैरियंस की। अब मीजोन्स की कैटेगरी के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स आते हैं, पायोन्स, कायोन्स एंड ईटा पार्टिकल। पायोन्स तीन हैं, कौन से? पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल एंड पाई पॉजिटिव। सिमिलरली केओन्स भी तीन हैं, के नेगेटिव, के न्यूट्रल एंड के पॉजिटिव। लेकिन ईटा पार्टिकल जो है वो एक ही है, ईटा न्यूट्रल। सबको समझ आया भाई यहां तक कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं? यस यस सर। ये याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पायोन मीजोन है या क्या है, सब आपको पता होना चाहिए। अब हेड्रोन की दूसरी कैटेगरी क्या है? एक तो हो गया मीजोन और दूसरा क्या है बताओ? दूसरा इज बैरियंस। दूसरा क्या है? बैरियंस। अब बैरियंस कितने तरह के होते हैं? ठीक है, बैरियंस होते हैं 5 तरह के, ठीक है जी। बैरियंस होते हैं 5 तरह के। नंबर 1, न्यूक्लियन। कोई मुझे बताएगा न्यूक्लियन क्या क्या है? हमने न्यूक्लियन पढ़ा पहले 2 क्लासेस में, हमने न्यूक्लियन पढ़ा। न्यूक्लियन कौन है? व्हाट आर न्यूक्लियंस? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो न्यूक्लियंस आर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। सेकंड इज लैम्डा पार्टिकल। सेकंड इज लैम्डा पार्टिकल, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। थर्ड इज सिग्मा पार्टिकल्स। थर्ड इज सिग्मा पार्टिकल्स। सिग्मा पार्टिकल्स 3 है, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा न्यूट्रल एंड सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आता है टॉ पार्टिकल। टॉ टॉ पार्टिकल, टॉ नेगेटिव होता है। और लास्ट में आता है कैस्केड पार्टिकल्स। लास्ट में आता है कैस्केड पार्टिकल्स। इसका अलग सा सिंबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव और कैस्केड न्यूट्रल। कैस्केड न्यूट्रल, ठीक है जी। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं बैरियंस को। इनके नाम अलग अलग क्यों है? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से इनके नाम अलग अलग हैं? बैरियन को बैरियन क्यों बोलते हैं, ठीक है। वाई कैस्केड पार्टिकल इज नॉट लेप्टॉन? ये सब हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स कि ये डिवाइड तो हमने कर दिया, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइड हुआ कैसे है, कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है।
फिर हम पढ़ेंगे कि ओके डिवाइड तो तुमने कर दिया, लेकिन बैरियंस हैं क्या, लेप्टॉन्स हैं क्या, हेड्रॉन्स हैं क्या, ठीक है। तो लेट्स सी अगेन, वंस अगेन रिवाइज। एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो हिस्सों में डिवाइड किए, एक है हेड्रॉन्स और एक है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स कितने हैं, 12 हैं। हेड्रॉन्स की दो कैटेगरीज हैं, मेसॉन्स और बैरियंस। अब मेसॉन्स की 3 आगे और कैटेगरीज हैं और बैरियंस की आगे 5 और कैटेगरीज। तो मीजोन्स की कौन सी कैटेगरीज हैं, पायोन्स, केओन्स और ईटा पार्टिकल। और बैरियंस की कौन सी 5 कैटेगरीज हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, और लैम्डा पार्टिकल, सिग्मा पार्टिकल और टॉ पार्टिकल और लास्ट में कैस्केड पार्टिकल, ठीक है। पायोन्स कितने तरह के हैं, 3 तरह के। कायोन्स कितने तरह के हैं, 3 तरह के। ईटा कितने तरह का है, 1। न्यूक्लियॉन्स कितनी तरह के हैं, 2। लैम्डा कितनी तरह के हैं, 1। सिग्मा 3, टॉ 1, कैस्केड 3, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये टेबल आपको 2 बार 3 बार बनाकर अच्छे से एक बार दिमाग में याद रखना है अपने सीक्वेंस में। आपका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। आपको ये बढ़िया से याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि आप ये याद करो। कल के क्लास में मैं क्या करूंगा, देखो जैसे भी हम क्या डिफाइन करते हैं, जैसे ही हम कोई एलिमेंट्री पार्टिकल डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने इतने सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स अभी डिफाइन कर दिए हैं, तो हमें क्या उसके लिए बताना पड़ेगा, उसके लिए हमें बताने पड़ेंगे क्वांटम नंबर्स या फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्वांटम नंबर्स या फिर प्रॉपर्टीज, जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पर इन पार्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज। जैसे हम डिफाइन करते हैं चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर, ठीक है, बहुत सी प्रॉपर्टीज है, आइसोस्पिन। तो एक एक करके मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट दूंगा, उन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, और फिर हम हर एक पार्टिकल के लिए उस प्रॉपर्टी का नंबर देंगे। जैसे कि मान लो कि न्यूट्रॉन के लिए चार्ज क्या है, 0, ठीक है। वैसे ही उसका लेप्टॉन नंबर क्या होता है, बैरियन नंबर क्या होता है, आइसोस्पिन क्या होता है, सारा कुछ हम हर पार्टिकल के लिए डिफाइन करेंगे। अगर एक बार वो काम हो जाए, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो स्लोली स्लोली चलते हैं। आज तुम ये पार्टिकल्स को रिवाइज करने की कोशिश करो, अच्छे से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम एंड कंटिन्यू द सेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, यू कैन आस्क मी।